وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش، ایک مجاہد کی سنسنی خیز داستان آپ کے لیے پیش خدمت ہے مشن کشمیر۔ میں بمشکل 3-4 گھنٹے ہی سویا ہوں گا کہ شیر علی نے مجھے آ کر جگا دیا۔ اس نے اپنی چابی سے دروازہ کھول لیا تھا، کہنے لگا تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ مجھے پچھلے دروازے والی گلی میں سے نکال کر سڑک پر لے آیا۔ سردیوں کی رات کا پچھلا پہر تھا، سخت سردی تھی، ہلکی ہلکی دھند پھیلی تھی، سڑک سنسان پڑی تھی۔ شیر علی کی سیاہ رنگ کی چھوٹی انڈین گاڑی ایک طرف کھڑی تھی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ نہ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے، نہ اس نے کوئی بات کی۔ گاڑی نئی دلی کی کشادہ اور پچھلے پہر کے اندھیرے میں ویران سڑکوں پر ہوتی ہوئی شہر کے جنوب کی طرف چلی جا رہی تھی۔ دلی میں نے کافی گھوم پھر کر دیکھی تھی، مگر یہ علاقہ بالکل اجنبی لگ رہا تھا۔ میں نے یوں ہی پوچھ لیا کہ یہ کون سا علاقہ ہے۔ شیر علی نے اپنے سیاہ اوور کوٹ کے کالر چڑھا رکھے تھے اور اس کی آنکھیں سامنے سڑک پر جمی ہوئی تھیں۔ آہستہ سے بولا، بے معنی سوال کیوں پوچھتے ہو؟ معلوم ہوتا ہے تمہاری تربیت میں کچھ کمی باقی رہ گئی ہے۔ میں شرمسار سا ہو کر چپ ہو گیا۔ گاڑی اب شہر کے ایسے علاقے میں سے گزر رہی تھی جہاں دور دور کوٹھیوں کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ سڑک پکی تھی اور لگتا تھا کہ کسی دوسرے شہر کو جاتی ہے۔ کافی دور جانے کے بعد ایک جگہ شیر علی نے گاڑی بائیں جانب چھوٹی سڑک پر نکال دی۔ یہ سڑک شکستہ تھی اور دونوں جانب اونچی اونچی جھاڑیاں تھیں۔ یہاں سڑک پر بجلی کا کوئی کھمبا بھی نہیں تھا، بڑا اندھیرا تھا۔ شیر علی نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس بند کر کے چھوٹی بتیاں روشن کر رکھی تھیں اور گاڑی کی رفتار آہستہ کر دی۔ سڑک 2-3 جگہوں سے دائیں بائیں گھومی، پھر اندھیرے میں ایک مکان کی دیوار کے ساتھ جا کر رک گئی۔ ہم گاڑی سے باہر نکل آئے۔ یہ مکان نہیں بلکہ کوئی گودام تھا۔ شیر علی گودام کے دروازے کا تالا کھول کر مجھے اندر لے گیا۔ گودام کے اندر سیلن اور سردی تھی۔ میں نے ہاتھ گرم پتلون کی جیبوں میں دیے۔ شیر علی نے جیب سے ٹارچ نکال لی تھی۔ اس کی روشنی میں ہم ایک جگہ سیڑھیاں اترنے کے بعد ایک ڈیوڑی میں آ گئے۔ ڈیوڑی میں آگے ایک دروازہ تھا۔ اس دروازے کے آگے لکڑی کی الماری رکھی ہوئی تھی۔ شیر علی نے ٹارچ زمین پر رکھا اور کہا، ہاتھ ڈال کر میرے ساتھ الماری ایک طرف کرو۔ ہم نے الماری کو ایک طرف کھسکا دیا۔ پیچھے دروازہ تھا جو بند تھا۔ شیر علی نے دروازے کا تالا کھولا۔ اندر سے ٹھنڈی مرطوب ہوا کا جھونکا میرے شانوں کو چھو کر گزر گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ بلکہ کوٹھڑی تھی۔ شیر علی نے کسی جگہ دیوار پر لگا ہوا بٹن دبایا، کوٹھڑی میں روشنی ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں دیوار کے ساتھ ایک میز پر 2-3 وائرلیس سیٹ، فوٹوگرافی کا سامان، ایک انلارجنگ آپریٹس، مائکرو فلم بنانے والا کیمرہ پڑا تھا۔ یہاں فلم ڈیولپنگ کا پروسیس بھی موجود تھا۔ شیر علی نے سٹول میز کے قریب رکھ دیا اور مجھے بیٹھنے کو کہا۔ وہ خود اوور کوٹ اتار کر دوسرے سٹول پر بیٹھ گیا۔ کوٹھڑی میں مرطوب ٹھنڈک تھی۔ قریب ہی ایک مائکروسکوپ پڑی تھی۔ شیر علی کہنے لگا، تمہیں یہیں رہ کر مائکرو فلم پروسیسنگ، خفیہ کوڈ، فوٹوگرافی اور سگنل کے خفیہ اشاروں کی ٹریننگ حاصل کرنی ہوگی۔ میں نے بیزاری سے پوچھا، یہ ٹریننگ کتنے دنوں میں ہوگی؟ 3 ماہ لگیں گے۔ میں ٹریننگز لے کر تنگ آ گیا تھا۔ اب میں میدان عمل میں چھلانگ لگانا چاہتا تھا، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا، بلکہ ثابت ہو گیا کہ یہ ٹریننگ کورس کس قدر ضروری تھا۔ ان کے بغیر کوئی بھی کمانڈو جاسوس ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا، بلکہ الٹا اس کا دشمن کے ہاتھوں پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ میرا مطلب ہے بہت جلدی پکڑے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ آخری ٹریننگ کا مرحلہ بھی بے حد ہمت طلب اور مشکل تھا۔ مجھے اس کوٹھڑی اور اس کے ساتھ والے نسبتاً کشادہ ہال کمرے میں 3 ماہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ مجھے گودام کی خستہ حال متروکہ عمارت سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ شیر علی صبح منہ اندھیرے آ جاتا، وہ ناشتہ اور کھانا ساتھ لاتا تھا۔ دوپہر تک وہ مجھے فوٹوگرافی اور سگنل کے خفیہ اشاروں اور مائکروسکوپ پر مائکرو فلمنگ پروسیسنگ کی مشکل ترین ٹریننگ دیتا۔ میرے یہ 3 مہینے انتہائی مشقت کے مہینے تھے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں قید ہو کر کوئی چلہ کاٹ رہا ہوں۔ لیکن شیر علی نے ان 3 مہینوں میں مجھے وائرلیس اور ریڈیو ٹرانسمیٹر کے ذریعے خفیہ یعنی کوڈ اشاروں سے پیغام رسانی اور مائکرو فلم پروسیسنگ کا ماہر بنا دیا تھا۔ مائکرو فلم کی ایک نئی ٹیکنیک شیر علی نے مجھے سمجھائی اور اس کی پوری تربیت دی۔ جاسوسی اور خفیہ پیغام رسانی کے اس طریقے کو پکڑنا بہت مشکل تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کے جاسوسوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا تھا۔ انڈیا میں یہ بالکل نیا تھا اور اس کی کامیابی کے 100% چانس تھے۔ طریقہ یہ تھا کہ ایک عام خیریت کے خط میں ہر جملے کے بعد جو نقطہ ڈالا جاتا یعنی فل سٹاپ کا نقطہ، یہ انٹیلیجنس کا نقطہ ہوتا تھا۔ یہ کسی بھی فقرے کے آخر میں کاغذ پر جملے کے بعد چپکا دیا جاتا تھا۔ اس نقطے میں وہ پورا خفیہ پیغام ہوتا تھا جسے الگ کاغذ پر لکھ کر مائکروسکوپ سے چھوٹے سے چھوٹا کرتے ہوئے ایک نقطے میں مرکوز کر دیا جاتا تھا، اور پھر یہ نقطہ سوئی سے اٹھا کر
कागज पर फिक्रे के आखिर में बतौर फुल स्टॉप चिपका दिया जाता था। जिसको ये पैगाम भेजना होता था वो शख्स इस नुक्ते को उठाकर माइक्रोस्कोप या किसी दूसरे आलात के जरिए एनलार्ज करता और सारा मजमून उसके सामने आ जाता। शेर अली ने मुझे रेडियो ट्रांसमीटर पर खुफिया सिग्नल्स के इशारे भी ज़बानी याद करवा दिए। इन इशारों की मदद से मैं कोड अल्फाज में अपने साथी को इंडिया में किसी भी जगह पैगाम पहुंचा सकता था और उसका पैगाम वसूल कर सकता था। जब मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई तो शेर अली मुझे रात के वक्त इस माल गोदाम के कैद खाने से निकाल कर अपने रेस्टोरेंट वाले बेडरूम में ले गया। कहने लगा, अब तुम सो जाओ, कल का दिन भी तुम इसी बेडरूम में रहोगे और आराम करोगे। कल रात को मैं तुम्हें कुछ बातें ज़बानी बताऊंगा जो इंतहाई ज़रूरी हैं। उसके बाद अपने सीक्रेट मगर खतरनाक मिशन पर रवाना हो जाओगे। वो रात और अगला दिन मैंने शेर अली के बेडरूम में कैद तन्हाई में गुजारा। दूसरे दिन रात के 8 बजे शेर अली ने अपना खाना बेडरूम में ही मंगवा लिया। नौकर खाना लेकर आया तो उसने मुझे बाथरूम में छुपा दिया। कहने लगा, मैं नहीं चाहता कि ये लोग अब तुम्हें मेरे हाथ देखें। खाने के बाद उसने सिगार सुलगा लिया। अलमारी में से काले रंग की एक पॉकेट बुक निकालकर मेरे पास सोफे पर बैठ गया और कहने लगा, कमांडो शेरवान ने तुम्हें रॉ के बारे में जो खुफिया ब्रीफिंग दी है उससे उसने मुझे पूरी तरह आगाह कर दिया है। तुम्हारा मिशन बड़ा नाजुक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसी तुम्हारी तरबियत दी गई है और इस्लाम, पाकिस्तान और कश्मीर की जंग आज़ादी के बारे में तुम्हारे दिल में जो जज्बा मौजूद है, अगर तुमने अक्लमंदी और होशियारी से काम लिया तो तुम अपने मिशन में ज़रूर कामयाब होगे और जहाद कश्मीर, पाकिस्तान के इस्तेहकाम और इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दोगे और हिंदू साम्राज्य की इस्लाम दुश्मन साजिशों को कारी ज़रब लगाओगे। अब तुम्हें वो स्कीम बताता हूँ जिस पर अमल करते हुए तुम्हें अपने मिशन को कामयाब बनाना है। इस वक्त कश्मीर में मुजाहिदीन की सरगर्मियाँ अपने उरूज पर हैं और इंडियन फौजी यूनिटों को हर महाज पर शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारतीय हुकूमत कश्मीर में धड़ाधड़ फौजें भेज रही है और उनको असलहे की सप्लाई दिन रात जारी है। अंदर हुकूमत की मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स की फौजी शाख को खुफिया इदारे रॉ के मातहत कर दिया गया है। रॉ का हेडक्वार्टर तो दिल्ली में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में ही है, लेकिन कश्मीर में फौजी सरगर्मियों के तमाम उमूर कश्मीर अफेयर्स वाली शाख के हेड ऑफिस में तय पाते हैं, जिसे दिल्ली से अहमदाबाद मुंतकिल कर दिया गया है ताकि गैर मुल्की इंटेलिजेंस की नजरें भी इस पर न पड़ सकें। इस राज को इंतहाई खुफिया रखा गया है। इस महकमे का इंचार्ज गुजरात का काठियावाड़ का रहने वाला है। एक तजुर्बेकार सिविल ऑफिसर है जिसका नाम GD पांडे यानी गोकुल दास पांडे है। उसके महकमे को स्पेशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन हकीकत में कश्मीर में जितनी नई फौजी यूनिटें जाती हैं और उनके लिए जहां जहां से असलहे से भरी हुई स्पेशल मिलिट्री ट्रेनें जम्मू की तरफ रवाना होती हैं, वो सब उस महकमे के इशारों पर चलती हैं। इस महकमे का बराह रास्त भारतीय फौजी हाई कमांड से सिलसिला जुड़ा हुआ है। इंडियन फौजी हाई कमांड कश्मीर में फौजों की नकलो हरकत की जो स्कीम तैयार करके इस महकमे के सरबराह GD पांडे को भेज देता है और फिर मिस्टर पांडे का महकमा इस स्कीम पर अमल करते हुए फौजों को भारत की मुख्तलिफ छावनियों से रवानगी और असलहे की तरसील का सारा काम खुफिया तौर पर अपनी निगरानी में करवाता है। दूसरी बात यह है कि कश्मीरी मुसलमानों ने क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान किया था, लेकिन भारतीय हुकूमत ने फौरन वहां अपनी फौजें दाखिल करके कश्मीर पर जबरदस्ती अपना कब्जा जमा लिया था। अब कश्मीरी मुसलमान जिनकी रियासत कश्मीर में वाज़े अक्सरियत है और हक़ खुद इख्तियारी के लिए लड़ रहे हैं, तो इंडियन हुकूमत ये समझती है कि पाकिस्तान इन कश्मीरी मुसलमानों के लिए अपने कमांडो भेज रहा है, जो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कश्मीरी मुसलमानों का तो बच्चा बच्चा कमांडो बनकर अपनी बका की जंग लड़ रहा है। उन्हें बाहर की मदद की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से कश्मीरी मुसलमानों को इस्लाम के नाते इखलाकी मदद जरूर मिल रही है, लेकिन फौजी मदद का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन चूंकि भारतीय हुकूमत ने अपने तौर पर यह तय कर लिया है कि पाकिस्तान कश्मीरी मुसलमानों की मदद कर रहा है, इसलिए इंदिरा गांधी की हुकूमत पाकिस्तान में तखरीबकारी का एक बहुत खतरनाक और वसी मंसूबा बना रही है। ये मंसूबा इंदिरा गांधी के तैयार करदा इसी बदनाम खुफिया इदारे रॉ की कश्मीर अफेयर्स वाली शाख के जरिए तैयार किया जाता रहा है और इसका इंचार्ज भी यही GD पांडे है। इस नापाक मंसूबे के जरिए पाकिस्तान में तखरीबकारी की जाएगी, बम के धमाके किए जाएंगे, मसाजिद में बम फेंककर मुसलमानों को मुसलमानों के खिलाफ लड़ाया जाएगा, मजहबी मुनाफरत फैलाई जाएगी। मैं बड़ी तवज्जो से शेर अली की बातें सुन रहा था। मेरा जहन उसकी बातों के साथ साथ चल रहा था। एक पल के लिए वो खामोश होकर मेरी तरफ गौर से देखने और सिगार के कश लगाने लगा। फिर इसी तरह मेरी आंखों में आंखें डाले बोला, तुम्हें अहमदाबाद जाकर रॉ की कश्मीर अफेयर्स के हेड ऑफिस के इंचार्ज GD पांडे यानी गोकुल दास पांडे तक रसाई हासिल करनी है। रसाई भी इस तरीके की हासिल करनी है कि वो तुम पर बेहद एतमाद करने लगे।
उसके बाद तुमने अहमदाबाद में ही अपना खुफिया हेडक्वार्टर बनाना होगा। तुम कश्मीर में ताज़ा इंडियन फौजी यूनिटों की नक्लो हरकत और असलहे की सप्लाई के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करके इन मालूमात की रिपोर्ट कोड अल्फाज में मुझे पहुंचाओगे। मैंने तुम्हें अपने रेडियो ट्रांसमीटर के खुफिया सिग्नल बता दिए हैं, बल्कि तुम्हें याद करा दिए हैं। एक बात याद रखना, तुम मुझे हमेशा रात के 12 बजे से 1 बजे के दरमियान रेडियो ट्रांसमीटर पर पैगाम दिया करोगे। मैंने शेर अली को सवाल किया। मैं इससे पहले अहमदाबाद कभी नहीं गया। उस शहर के बारे में इतना ज़रूर जानता हूँ कि यहाँ एक अरसे तक मुसलमान बादशाह हुकूमत करते रहे हैं और रज़िया सुल्ताना इसी सूबे की मलिका थी, और दूसरे ये कि हिंदुओं का मशहूर मंदिर सोमनाथ इसी सूबे में किसी जगह पर वाक़ है, जिसके बुत महमूद गजनवी ने पाश किए थे और हिंदू राजाओं के बेपनाह लश्कर को सोमनाथ के मैदान में शिकस्त फाश दी थी। शेर अली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये उसी सूबे गुजरात काठियावाड़ का दारुल हुकूमत है और इसका इस्लामी नाम अहमदाबाद है। ये कपड़े के कारखानों का शहर है और बहुत बड़ी तिजारती मंडी है। यहाँ कुतुब शाही खानदान के कई शाही महल्लात और तारीखी इमारतें अब तक मौजूद हैं। बहरहाल वहाँ हमारा एक गुजराती मुसलमान मुजाहिद तुम्हारी इब्तदाई इमदाद के लिए मौजूद होगा। वो तुम्हारी कुछ दूर तक रहनुमाई करेगा। आगे सारा काम तुम अकेले ही करोगे। अब मेरी बात तवज्जो से सुनो। ये जो मिस्टर GD पांडे है, मैं तुम्हें इसकी तस्वीर भी दिखा दूंगा। ये शख्स वैसे तो इंडियन ब्यूरोक्रेसी का पुराना ICS ऑफिसर है, बड़ा पढ़ा लिखा है, मगर दूसरे हिंदुओं की तरह ये भी बेहद तवहम परस्त आदमी है। ये जैनी है, यानी जैन मत का पैरोकार है और जैन धर्म को ही निजात का वाहिद जरिया समझता है। इसलिए तुम उसे जैन मत के एक वरदान साधु के रूप में मिलोगे। कमांडो शेरवान की ज़बानी मुझे ये भी मालूम हो चुका था कि कश्मीर में तुम्हें हिंदुइज्म के तमाम फिरकों की तालीम दी गई है। यकीनन तुम जैन मजहब के बारे में पूरी मालूमात रखते होगे। वैसे मैं तुम्हें अंग्रेजी में लिखा हुआ एक किताबचा भी दूंगा, जिसमें जैन मजहब के बानी महावीर की जिंदगी के हालात और हिंदू धर्म के इस फिरके के बारे में मुकम्मल मालूमात दर्ज है। महात्मा गांधी भी जैन मत के मानने वालों में से था, मगर GD पांडे तो जैन धर्म का दीवाना है और इस धर्म के बानी महावीर का आशिक है। तुम इसकी इस कमजोरी से फायदा उठाते हुए उसका एतमाद हासिल करोगे। अब ये तुम्हारी मौका शनासी और अक्ल पर मुनहसिर है कि तुम GD पांडे को किस हद तक अपने काबू में करते हो। वैसे जरूरत इस बात की है कि उसे पूरे काबू किया जाए। थोड़ी बहुत रसाई हासिल करने से हमारा काम नहीं होगा। मैं खामोशी से बैठा शेर अली की जबान से अदा होने वाले एक एक लफ्ज को बड़े गौर से सुन रहा था और उसे अपने दिमाग में बिठाता जा रहा था, क्योंकि इन बातों ने आगे चलकर मेरे काम आना था। शेर अली कहने लगा, हमारा अहमदाबाद वाला आदमी इस सिलसिले में भी तुम्हारी मदद करेगा। जैसा कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि ये आदमी कोई जासूस नहीं है, इसका पाकिस्तान से भी कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। वो भारत में रहने वाले हजारों मुसलमानों की तरह एक आम मुसलमान है, जिसको हिंदू अपना ज़रख़रीद गुलाम समझता है और जिसकी तरक्की के रास्ते हिंदुओं ने मसदूद कर रखे हैं। शेर अली ने मुझे उस आदमी का नाम बताया। हमने उसका फर्जी नाम करीम भाई रखा है। ये नाम गुजरात काठियावाड़ के मुसलमानों में बड़ा आम है। शेर अली ने कहा, हिंदुस्तान के दूसरे मुसलमानों की तरह करीम भाई को भी इस बात का यकीन हो गया है कि हिंदू इस्लाम का दुश्मन है और वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की पूरी नस्ल को या तो हिंदू बना देना चाहता है या फिर उसे माशी और इक्तसादी एतबार से इतना तबाहाल कर देना चाहता है कि भारत के मुसलमानों की हैसियत एक भिखारी से ज्यादा न हो। चुनाचे करीम भाई ने अपने और इस्लाम के दुश्मन के खिलाफ मरते दम तक जिहाद करने का अहद कर रखा है। उसका दुश्मन और मेरा दुश्मन और हमारे दीन इस्लाम का दुश्मन सिर्फ हिंदू और हिंदू ही है। सिख तो जिधर मंदिर जाता है उसी तरफ जाते हैं, उनकी इंडिया में अपनी कोई हैसियत नहीं है। एक तरफ से वो भी मुसलमानों के दुश्मन ही हो सकते हैं। फिर शेर अली ने मुझे बताया कि करीम भाई मुझे अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पर लेने आया होगा। मैं उसे तुम्हारे जाने के बाद अपने खुफिया जराए से इतला कर दूंगा। मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाता हूँ। शेर अली ने मुझे पॉकेट बुक में से करीम भाई की पासपोर्ट साइज की तस्वीर दिखाई। मैंने उसकी शक्ल को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लिया। तुम अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पर उसे पहचान कर उसके पास जाओगे। वो तुम्हें स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बुक स्टॉल पर खड़ा मिलेगा। तुम अस्सलाम वालेकुम कहकर उससे मुसाफा करोगे। वो कोड अल्फाज में तुमसे पूछेगा, आपने तो पिछले स्टेशन पर उतरना था। तुम उसके जवाब में कहोगे, मुझे शेर के शिकार का शौक है, क्या तुम मुझे शेर के शिकार पर ले चलोगे? बस तुम्हारी शनाख्त मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद करीम भाई तुम्हें अपने यहाँ ले जाएगा। अब मैं तुम्हें रॉ के कश्मीर अफेयर्स के हेडक्वार्टर के इंचार्ज मिस्टर GD पांडे की तस्वीर दिखाता हूँ। शेर अली ने उसी पॉकेट बुक में से मुझे GD पांडे की तस्वीर भी निकाल कर दिखाई। एक भारी चेहरे और मोटी तोंद वाले बीमार से हिंदू की तस्वीर थी, जिसके सर के बाल गायब थे। कानों के ऊपर थोड़े थोड़े सफेद बालों की झालर सी थी। मूंछों के बाल भी सफेद हो चुके थे।
उसने सफेद मलमल का कुर्ता पहना हुआ था, जैसा उस जमाने के कांग्रेसी लीडर पहना करते थे और अब भी पहनते हैं। नीचे उसने मलमल की दोहरी धोती पहनी हुई थी और बाग में एक कुर्सी पर बैठा था। शेर अली ने कहा, ये पांडे की कोठी के लॉन में उतरी हुई तस्वीर है। यूं समझ लो कि तुमने इस शख्स पर फतह हासिल करनी है और उसके दिलो दिमाग पर कब्जा करना है, और ये काम तुम दौलतमंद बनकर, मुल्क के लीडर बनकर, मुल्क के हीरो बनकर नहीं कर सकते। सिर्फ इस शख्स के अकीदे की नाजुक रग को अपने हाथ में लेकर, और उसका वाहिद रास्ता है कि तुम जैन मत के विद्वान और शास्त्री बनकर उसके सामने जाओ। अगर तुमने अपनी बातों से उसको मुतासिर कर लिया तो फिर समझो कि तुम्हारे आधे से ज्यादा कमांडो मिशन उसी वक्त मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि कश्मीर के महाज पर इंडियन फौजी हाई कमांड की सारी हिकमत अमली इसी शख्स GD पांडे के ऑफिस में तैयार होती है। बातें करते करते रात के 9:30 बज गए। शेर अली ने अपने मुलाजिम को जो खाना लेकर आया था कह दिया कि मैं अब सो जाऊंगा, मुझे डिस्टर्ब न किया जाए। चुनाचे इस दौरान वहाँ कोई भी ना आया। शेर अली ने खुद बिजली की केतली में पानी गर्म करके कॉफी तैयार की। शेर अली कहने लगा, जैनी वरदान या साधु बनने के लिए तुम्हारे लिए जरूरी होगा कि तुम जैनी अवतार सावर्धन की मुड़ी पर जाकर वहाँ से 4 गांठों वाला मंगल सूत्र लेकर उसे अपनी दाईं कलाई में बांधो। मैंने पूछा, ये जैनी अवतार कौन है और इसकी मुड़ी कहाँ है? शेर अली ने कहा कि जैन मत वालों का अकीदा है कि जैन मत के बानी महावीर जयवर्धन ने तीसरी बार बीकानेर के एक राजा के घर अवतार बंकर में जन्म लिया था और उसका नाम सावर्धन था। सावर्धन यही महावीर की तरह राजपाट छोड़कर जंगलों में सारी उम्र रहा और मरने के बाद लोग उसे नंदी कुंड ले गए, जो बीकानेर से 8 मील के फासले पर है और जहां उस जमाने के राजाओं की दाश्ताओं की मुड़ियां हैं, जिनके ऊपर संगमरमर की छतरियां बनी हुई हैं। उनके करीब ही जैनी अवतार सावर्धन की मुड़ी है, जहां एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। वहां एक ज्ञानी पंडित बैठता है। ये मंगल सूत्र तुम्हें वही पंडित देगा, मगर इससे पहले इस बात की पूरी तसल्ली करेगा कि तुम जैन मत के बारे में पूरी मालूमात रखते हो और महावीर स्वामी के सच्चे परिस्तार हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, इस बात की फिक्र न करें, मैं उस पंडित को कायल कर लूंगा। उसके बाद मुझे शेर अली ने अंग्रेजी की छोटी सी किताब निकाल कर दी जो जैन मत के बानी महावीर जयवर्धन के बारे में थी। इसे तुम पूरी तरह पढ़ लेना, ये तुम्हारी मालूमात में इजाफा करेगा। सिगार की राख आतिशदान में झाड़ते हुए शेर अली ने कहा, बाकी तुम्हारे पास जो टैबलेट बम स्प्रो की गोलियों की शक्ल में है वो तुम अपने पास ही संभाल कर रखना। ये धमाका खेज खुफिया बम तुम्हारे बड़े काम आ सकते हैं, मगर इन्हें खास मौके पर इस्तेमाल करना। इस कोड जबान में लिखा हुआ फार्मूला भी तुम अपने पास ही रखना। मैंने अगर तुम्हें कोई मामूली खैरियत का कोई खत लिखा तो खत की आखिरी सत्र के आखिरी फुल स्टॉप वाले नुक्ते को उठाकर इनलार्ज कर लेना, उसी में तुम्हारे नाम मेरा खास पैगाम होगा। तुम भी अगर कोई पैगाम मुझे रेडियो सिग्नल के जरिए न पहुंचाना चाहो तो खत लिख देना और अपना पैगाम खत के आखिरी फिक्रे के आखिर में फुल स्टॉप में बंद कर देना। मैं उस नुक्ते को इनलार्ज करके तुम्हारा खुफिया पैगाम पढ़ लूंगा। बाकी तुम्हें अगर कोई खुफिया पैगाम रेडियो सिग्नल के जरिए कमांडो शेरवान को देना हो तो तुम्हें शेरवान ने अपने ट्रांसमीटर के खुफिया इशारे जरूर समझा दिए होंगे। जी हाँ, वो सिग्नल इशारे मुझे याद हो चुके हैं और आपके ट्रांसमीटर सेट के खुफिया सिग्नल भी मुझे ज़हन नशीन है। शेर अली बोला, और ये बात भी याद रखना कि मुझे रेडियो सिग्नल के जरिए जब भी कोई पैगाम भेजना हो तो हमेशा रात के 12 बजे और 1 बजे के दरमियान भेजना। इस वक्त मेरा खुफिया छोटा रेडियो ट्रांसमीटर सेट मेरे उसी बेडरूम में मेरे पास ही होता है। कमांडो शेरवान भी मुझे उसी वक्त पैगाम के सिग्नल भेजता है। रात के 10 बज चुके थे। मैं शेर अली से पूछने ही वाला था कि मुझे अहमदाबाद अपने मिशन पर किस वक्त रवाना होना है कि उसने सोफे से उठते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना थोड़ा सा हुलिया बदल लो। तुम्हारी मूछें नहीं है, तुम छोटी छोटी मूछें रख लो और बालों का स्टाइल भी तब्दील कर लो। इसकी वजह यह है कि मेरे रेस्टोरेंट के आदमियों ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया है। ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि अहमदाबाद में तुम एक हिंदू बनकर जाओगे जो जैन मत का मानने वाला वरदान और शास्त्री है। तुम अपना कोई हिंदुआना नाम अभी मत रखना। करीम भाई तुम्हें गुजरात काठियावाड़ का कोई हिंदुआना नाम बता देगा। दूसरे मॉडर्न साधु बनकर GD पांडे के पास जाओ। आगे वहाँ जैसे हालात हों वैसे ही करना। करीम भाई इस सिलसिले में तुम्हें सही मशवरा देगा। जैन मत का साधु बनने के लिए तुम्हें लंबे बाल लंबी दाढ़ी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस सफेद कुर्ता, सफेद धोती और चप्पल ही काफी रहेगी। जैन मत के साधु सफाचट भी होते हैं। सिर्फ माथे पर तुम्हें जैनी तिलक लगाना होगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं आज ही से मूछें बढ़ानी शुरू कर देता हूँ। बालों का स्टाइल भी तब्दील कर लेता हूँ। अगर जुट्टादारी साधु बनना पड़ा तो वो भी बन जाऊंगा। अगर करीम भाई ने कहा कि अंग्रेजी कपड़ों वाला मॉडर्न स्वामी ही बना रहूं तो यही कपड़े ठीक रहेंगे। सिर्फ माथे पर तिलक लगा लूंगा। शेर अली ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। वो मेरे लिबास का जायजा ले रहा था।
कहने लगा अहमदाबाद में इतनी सर्दी नहीं होती, वहाँ तुम्हें स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक कोट ही काफी रहेगा, या ये जैकेट जो तुमने पहन रखी है ठीक रहेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि लिबास का फैसला भी तुम करीम भाई से मिलकर ही करना। हो सकता है वो तुम्हें सफेद खद्दर का कुर्ता पाजामा और खद्दर की जैकेट पहनने का मशवरा दे, क्योंकि आजकल के मॉडर्न जैनी साधु आम तौर पर ऐसा ही लिबास पहनते हैं। सिर्फ कट्टर किस्म के जैनी साधु या तो नंगे रहते हैं और या फिर सफेद खद्दर का कुर्ता और धोती पहनते हैं। अब तुम आराम करो। मैंने पूछा, मुझे अहमदाबाद किस वक्त रवाना होना होगा? शेर अली ने माथे पर उंगली फेरते हुए कहा, ये बताना तो मैं तुम्हें भूल ही गया था। वो ऐसा है कि मैंने बरोड़ा एक्सप्रेस में तुम्हारी सेकंड क्लास की सीट रिजर्व करवा दी है। तुम्हें सबसे पहले अहमदाबाद जाकर करीम भाई से मुलाकात करनी होगी। मैंने तुम्हें बता दिया है कि वो तुम्हें प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बुक स्टॉल पर मिलेगा। तुम्हें उसकी फोटो भी दिखा दी है। तुम्हारी गाड़ी सुबह 6:15 बजे नई दिल्ली के स्टेशन से चलेगी। अब तुम सो जाओ, सुबह मुलाकात होगी। शेर अली दरवाजा बंद करके चला गया। मैं बिस्तर पर लेट गया और जैन मत के बानी के बारे में उसने मुझे जो अंग्रेजी किताबचा दिया था उसका मुताला करने लगा। ये कोई 150 सफ़े की किताब थी। मैंने बिस्तर पर लेटे लेटे सारी किताब पढ़ ली। इस किताब से जैन मत के बानी और जैन धर्म के मुतालिक मेरी मालूमात में बड़ा अहम इजाफा हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।